شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری نرخ نامہ اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق، شہری مہنگے داموں پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور۔ کہتے ہیں کہ انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تفصیلات شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں ناجائز منافع خور بے لگام، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مارکیٹ میں ادرک 600 اور لہسن 480 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 540 اور لہسن 300 روپے کلو ہے۔ عام مارکیٹ میں لیمو 600 اور اروی 240 روپے فی کلو مل رہی ہے، جبکہ سرکاری نرخ نامہ میں اروی 182 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں بھنڈی اور ٹنڈے 160، ہری مرچ 120، پیاز 100، آلو 80 اور ٹماٹر 30 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں بھنڈی 122، آلو 70، ہری مرچ 64، پیاز 80 اور ٹماٹر 28 روپے کلو دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں سندھی آم 200، فالسا 240 اور آڑو 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سیب 400، آلو بخارا 1200، خوبانی 800، کھجور 600 اور گرما 200 روپے فی کلو ہے۔ سرکاری نرخ نامہ میں آلو بخارا 376، خوبانی 192 اور گرما 76 روپے کلو مقرر ہیں، جبکہ مارکیٹ میں کیلے 160 روپے درجن دستیاب ہیں۔ سرکاری نرخ نامہ میں چکن 388 روپے کلو اور فارمی انڈے 213 روپے فی درجن مقرر ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن سراپا احتجاج۔ مظاہرے میں سیاہ پٹیاں باندھے اساتذہ اور ملازمین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ احتجاج یونیورسٹیوں کی ریکرنگ گرانٹ ختم کرانے کے خلاف کیا گیا۔ تفصیلات شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کی طرف سے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کی ریکرنگ گرانٹ کو ختم کرنے کا معاملہ۔ اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں سراپا احتجاج۔ مظاہرین کی حکومت تعلیم پالیسیوں کے خلاف سخت نعرے بازی۔ صدر ڈاکٹر ستار ملک کا کہنا ہے کہ ریکرنگ گرانٹ ختم ہونے سے یونیورسٹیاں معاشی بحران کا شکار ہوں گی، جس کا اثر پوری سوسائٹی پر ہوگا۔ جو بجٹ کا والیوم تھا 2017 میں وہ 5200 ارب تھا اور آپ کی ریکرنگ گرانٹ اس وقت بھی 65 ارب تھی۔ آج آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کا والیوم 14,400 ارب ہو گیا ہے، یعنی 3 گنا بڑھ گیا ہے، لیکن ریکرنگ گرانٹ ابھی بھی 65 پہ کھڑی ہے۔ تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ریکرنگ گرانٹ کی سیلنگ کو بڑھایا جائے، کم از کم 3 گنا کیا جائے، تو کم از کم 150 ارب روپیہ کیا جائے۔ اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وفاق نے دینا ہے یا صوبوں نے دینا ہے، یہ چیز کلیئر کی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیحات میں اعلیٰ تعلیم شامل نہیں، وہ یونیورسٹیوں کی خود مختاری ختم کرنے یا ان کی نجکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے خلاف ہر سطح پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ ہماری ریکرنگ گرانٹ کی کٹ کا پتہ چلا ہے ہمیں کہ وفاقی حکومت ہمیں بالکل وفاق سے جو ہے وہ الگ کری ہے، اور صوبوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی ہے۔ تو جب یہ سبسڈی ختم ہو جائے گی تو یونیورسٹی کے بجٹ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سب سے زیادہ یہاں ملازمین اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ اور امپلائیز سب پہ پڑے گا۔ مظاہرین نے حکومت سے ریکرنگ گرانٹ کا فیصلہ واپس لینے اور ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ لہیا میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ دریائی کٹاؤ کے باعث سینکڑوں اراضی، فصلیں اور مکانات دریا برد ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر امیر بیدار کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، جلد اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد سرفراز۔ لیا کے علاقہ پہاڑپور میں دریائی کٹاؤ نے تباہی مچا دی۔ موضع خان والا اور موضع کالرو میں دریائے سندھ کے کٹاؤ کے باعث فصلیں اور مکانات دریا برد ہو گئے۔ علاقہ مکین کروڑ روپے کے نقصانات سے دوچار۔ ڈپٹی کمشنر امیر بیدار نے ایم پی علی اصغر گرمانی کے کزن کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ will inshallah take it up with PDMA اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ، کیونکہ لوگوں کی جو ہیں وہ فصلیں، ان کے ایریاز، انہوں نے یہاں سے گھر بھی موومنٹ کی ہے، تو کافی حد تک جو ہے وہ دریا اندر آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ سٹڈز کا بننا رپورٹڈلی ایز پر اریگیشن اتھارٹیز وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو انشاءاللہ we'll take it up۔ حسنین خان گرمانی کا کہنا تھا کہ بند کی تعمیر کے لیے رپورٹ بھجوائی جا رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں کے لوگوں نے ڈپٹی کمشنر اور ممبر صوبائی اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ کیا۔ ہم جو ہے نا اس کی پرپوزل ہم نے بنوائی ہے، پہلے بھی ہم نے وزٹ کیا تھا، اب بھی میڈم صاحبہ سے وزٹ کرایا ہے ہم نے۔ انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کو ہم جلد سے جلد انشاءاللہ ریلیف دیں گے۔ اس کا پرپوزل بنایا، اس کا ہم رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اریگیشن سیکٹری وغیرہ سے، اور میڈم صاحبہ سے بھی کہا ہے میں نے کہ ایمرجنسی طور پر جہاں
कोई फंड दें जिससे इनको जल्द अज जल्द रिलीफ मिले और इनके जो है फसलात जो हैं उनका बचाव हो सके। ये जितना कटाव हो गया है, लोगों के घर यहाँ पे पानी तबाही कर रहा है, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। हमारी हुकूमत से पुरजोर रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे या तो कोई इस तरह रुकावट का, जिसको हम स्टड कहते हैं, या सिपर दिए जाएं ताकि ये जो आवाम का नुकसान हो रहा है उसका अजाला हो सके। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से रिहाइश के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा भी किया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। तुरंडा मोहम्मद पनाह में जानवरों के इलाज के लिए बनाई गई सरकारी डिस्पेंसरी टूट फूट का शिकार। इमारत नकारा होने की वजह से डिस्पेंसरी को ताले लग गए। इलाका मकीन जानवरों के इलाज के लिए दर बदर खवार होने पर मजबूर। तफसीलात गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। तुरंडा मोहम्मद पनाह में मवेशियों के लिए बनाई गई डिस्पेंसरी खस्ता हाली का शिकार। वेटरनरी अस्पताल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मवेशी पाल हजरात का कहना है डिस्पेंसरी की खिड़कियां दरवाजे चोर ले गए। इमारत नकार होने की वजह से वेटरनरी अस्पताल को ताले लग गए। जानवरों के इलाज के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असां जेड़ा ना गरीब लोग से सादा जेड़ा गुजर बसर है, असां जानवर पालते, असां अपना जानवर पालते, असां विचेनू वाल असां अपने बाले दा गुजर बसर करनू। अगर बिलवर सारे जानवर बीमारी थी वञनि, सारे जेड़ा करीब दा अस्पताल है, असां ये इलाज मुआलजे के उतां आमदूं तो उन अस्पताल को ताले हुननि। ताले इन वजह तो लगे पन ते वो बिल्डिंग जेड़े ना नकार है। मवेशी पाल हजरात कहते हैं कि बीमार जानवर को अस्पताल लाते हैं तो ताला लगा होता है। सरकारी डिस्पेंसरी बंद होने की वजह से प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। प्राइवेट अद्वियात कुव्वत खरीद से बहर हैं। जानवरों का इलाज भी महंगा हो चुका है। अस्पताल टूटी हुई होने की वजह से डॉक्टर इतना खुद बंदा नहीं, जेड़ी वजह से असाडे मवेशी बीमार थी वञनि, असां को प्राइवेट डॉक्टर को ॻोल्हणो पवंदो है। असां इहा महकमे वाले को आहियूं कि हीअं अस्पताल को बनाया वञे ताकि असां हीअं अस्पताल डॉक्टर कनो दवा घंटे अपने माल धाने को बचा सकें। मवेशी पाल हजरात ने इंतजामिया से डिस्पेंसरी की इमारत को इस तरह नव तामीर करके फआल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तुरंडा मोहम्मद पनाह। शदीद गर्मी में भेरा के शहरी पानी से महरूम। शहरियों का कहना था वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक हफ्ता से बंद है, खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वाटर फिल्टर प्लांट जो है तकरीबन 1.5 हफ्ते से ये ख़राब है और अवाम शदीद परेशान है पानी की वजह से। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नहर है जहाँ से अक्सर लोग जाके पानी ले आते हैं इस फिल्टर प्लांट की वजह से, लेकिन इस गुर्बत के दौर में और इस बल्दिये के नाले की वजह से ये फिल्टर प्लांट अभी तक ठीक नहीं हुआ, जिससे वाटर सप्लाई जो बेरा शहर की उसमें से जो पानी आता है बदबू वाला पानी, गटर का पानी उसमें शामिल होता है, जिससे शहरी पी कर परेशान भी होते हैं और बीमार भी होते हैं। हुकाम वाला से गुजारिश है कि इस फिल्टर प्लांट को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि आवाम की पानी की परेशानी। रहीम यार खान में ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां कायम करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज ने मवेशी मंडियों के कयाम बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडीसीआर अहमद रजा भट्ट का कहना है कि जिला भर में 11 मवेशी मंडियां कायम होंगी। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, हमारे डीसी साहब ने मीटिंग हमने कर ली है और तमाम अदारे वहाँ मौजूद थे। हम इस दफ़ा रहीम यार खान में 11 कैटल मार्केट्स हम बनाएंगे। 2 हमारे ज़िला कौंसिल की होंगी, 1 म्यूनसिपल कमेटी सादकाबाद बनाएगा और 1 हमारे जो बाकी 8 जो हैं वो कैटल मार्केट्स जो हैं बनाएंगी। उसमें सर हमने हदायत जारी कर दी है कि हमारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे कोंगो वायरस का जो स्प्रे है वो लाजमी किया जाए और ये मंडियां जो हैं वो ईद से 10 दिन पहले ये इस्टेब्लिश कर ली जाएंगी। यहाँ पर चारा जो है जानवरों का, पानी की सहूलत, टेंटेज और रास्ते और पब्लिक की फैसिलिटेशन के मैक्सिमम इंतजामात इंशाल्लाह हम इंश्योर करें। बहावलपुर में जुज़वी तौर पर मवेशी मंडियां फाल। मंडियों में ताहाल जानवर न पहुंचे। कराची मोड़ पर जिला की सबसे बड़ी मवेशी मंडी खाली। व्यापारी खाली मंडियों से परेशान हैं। कहते हैं फी जानवर रोजाना 500 रुपए फीस अदा करनी पड़ती है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले साल जानवर आ गए थे, ठीक है ना। इस साल जो ठेका मंडी का हुआ है वो 50 करोड़ रुपए हुआ है। अब ये बताओ कि जब हम माल पहले लेकर आते थे उस टाइम एंट्री 150-100 रुपए थी, अब एंट्री 400 से 500 हो गई है और ईद पे जो भी माल आएगा बहुत कम होगा। इसकी निस्बत जो दूसरी मंडियां हैं उनके ठेके कम है, उनमें माल ज्यादा। मुजफ्फरगढ़ में मवेशी मंडियां ताहाल ना लगाई जा सकी। शहरी प्राइवेट तौर पर जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ। मुख्तलिफ भानों में जानवरों की आवभगत जारी। इस हवाले से इंतजामिया का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में 4 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मवेशी मंडी के हवाले से अब तक
तारीख का ऐलान नहीं हुआ। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, हमें तो पता नहीं है। अब बाहर जाते हैं तो हमें मजीद तंग किया जाता है, वो कहते हैं जी अभी मंडी नहीं लगी, रोड पर मत लाएं। अब मजबूरन हमें यहाँ मकसद है कि भी जानवरों को यहाँ रखना पड़ रहा है, बड़े परेशान हैं। पहले गंदम के हालात ये हैं, अब सिचुएशन ये है कि हमारे जानवर नहीं बकते, हम अब फाका कुशी पाते हैं, गरीब लोग हैं, बस यही दरख्त हैं बस खुदा की तरफ से दिए हुए, उनके नीचे उन्हें गुजारा करा रहे हैं। छप्पर मुल्तान में गर्मी से सताए शहरी पहुंचे अपना मनपसंद शरबत पीने, कोई संदल तो कोई बादाम का शरबत पीने में मसरूफ। मुल्तान में गर्मी से सताए शहरी पहुंचे अपना मनपसंद शरबत पीने, कोई संदल तो कोई बादाम का शरबत पीने में मसरूफ है। गर्मी बहुत है, ठंडे मशरूबात के बिना गुजारा नहीं। मज़ीद जानते हैं अनिशा आसिफ से। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान के दर्जा हरारत की अभी मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त 41 सेंटीग्रेड है और इस शदीद गर्मी में शहरियों ने गर्मी का एक तोड़ का हल निकाल लिया है, वो ये कि मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है और शहरी अपने मनपसंद मशरूबात पी रहे हैं जो कि 50 से लेके 100 रुपए तक में मैसर है। इस वक्त मैं जिस दुकान पे मौजूद हूँ वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के शरबत है, संदल का शरबत भी है, बादाम का शरबत भी है, इलायची का शरबत भी है और इसमें तिल मितीला मिलाकर आपको मिक्स शरबत भी दिया जाएगा। यानी अगर आपने संदल और बादाम का मिक्स शरबत पीना है तो वो भी दिया जाएगा और वो भी ठंडा यक। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो इस शरबत को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो इनसे इस हवाले से बात भी कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि गर्मी में कौन सा शरबत आपको पसंद है और क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप मालूम है कि मुल्तान शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये हम शरबत पीते हैं खान बाबा का, हम अपने दोस्तों के हमरा आते हैं तो शरबत पीते हैं, बहुत अच्छा है गर्मी के लिए और ठंडा शरबत होता है और इसकी मुनासिब कीमत होती है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये कीमत होती है। अभी आप कौन सा शरबत पीने? अब संदल का शरबत पी रहे हैं, मिक्स करके देते हैं, इसमें शक्कर वगैरह डालते हैं और बलंगू वगैरह होता है इसके अंदर, ठंडा शरबत होता है। अच्छा, आप सिर्फ संदल का ही शरबत पीते हैं या मुख्तलिफ और ट्राई भी करते हैं? मुख्तलिफ, जैसे ये बनाते हैं शरबत और जो भी बनाते हैं बहुत अच्छा देसी शरबत भी होता है इनके पास और मुनासिब कीमत होती है। गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, दर्जा रात गर्मी का बहुत ज्यादा होता है और सुकून मिलता है इसके पीने से। भाई बच्चों से भी बात करते हैं, शरबत पसंद है? जी। कौन सा शरबत पीते हो? यही वाला पीते हो, बच्चों को नाम नहीं आते। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ कि किस तरह बनाते हो शरबत और कितना बिकता है इस मौसम में, क्योंकि गर्मी बहुत है और आपकी दुकान पे काफी ज्यादा रश भी है, तो मुझे बताएं कि किस तरह कितना बिक जाता है, कितनी सेल हो जाती है? माशाल्लाह से एक पूरी कैन बनाते हैं, छोटा गिलास 30 का है, बड़ा 50 का है, 40 का है। ये अच्छा, ये देखिए, ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये अभी शरबत बना रहे हैं जिसमें ये मुख्तलिफ चीजें डाल रहे हैं, खोया बादाम पिस्ता भी डल रहा है भाई, और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि ये कैसा टेस्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी भी हो रही है और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप कहाँ से आए हैं और कौन सा वाला शरबत पी रहे हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ बाईपास यूनिवर्सिटी बीदर से 22 स्पेशल शरबत पीने आया हूँ यहाँ पे, संदल वाला बिदामो वाला। ये तो बहुत दूर से आए हैं, काफी दूर दूर से ये आए हैं शरबत पीने के लिए। इन्होंने मुझे भी एक ग्लास बना के दिया, मैं भी टेस्ट करती हूँ, आखिर इधर इतना रश है तो इनका टेस्ट तो करना, शरबत बनता है। मुझे बहुत ठंडा और बहुत मजे का है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे अगर आप पीछे देख सके बच्चे भी हैं जो शरबत लेने के लिए आए हुए हैं। आप मुझे बताओ भाई, कहाँ से आए हो और कौन सा शरबत पसंद है? ये शरबत पसंद है। कौन सा वाला? संदल वाला, बादाम वाला, खट्टा मीठा? संदल वाला। अच्छा, बच्चों को तो खट्टी खट्टी चीजें बड़ी पसंद होती हैं, तो संदल वाला शरबत क्यों पीते हो? मजे का लगता है? ठंडा होता है। ठंडा होता है, हम खुद ही ये वाला शरबत बेचते हैं। अच्छा भाई, ये बच्चा जो है इन्हीं की इधर से है और इसका यही कहना है कि ये जो शरबत है बहुत मजे का होता है। और मेरी टीम जो है, हमें भी शदीद गर्मी लग रही है और गर्मी के मौसम में अगर कोई ठंडी चीज मिल जाए तो वो एक नेमत की तरह होती है और ये शरबत जो है इस वक्त हमारे लिए नेमत की तरह है। इसीलिए दुकानों पे शहरियों का अच्छा खासा रश है, मशरूबात की दुकानों पे जो मुख्तलिफ शरबत पीने। और एक मजे की बात इसमें यह है कि अगर आपको अपना मनपसंदीदा शरबत जिस तरह मर्जी बनवाना है आप बनवा सकते हैं और ठंडा ठंडा यहाँ पे जो है शरबत मौजूद है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। मैं अपना शरबत जरा साइड पे रख दूं, बाद में इसको पीऊंगी। और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे बताएं, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे, कौन सा शरबत पी रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ से आए आप?
मैं मुल्तान चौक घंटा घर से आया हूँ स्पेशल भाई के भट्टी भाई के पास शरबत पीने के लिए। इनके पास बादाम किसका संदल का हर चीज़ का इनके पास शरबत होता है। गर्मी बहुत है इसलिए शरबत पीते हैं, ज़रा गर्मी की ना घबराहट सही हो जाती है। रोजाना आते हो या फिर? नहीं रोज़ ही आते हैं, रोज़ ही पीने आते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये दूर दराज से जो है लोग आते हैं शरबत पीने के लिए, बच्चे बड़े सभी, ना सिर्फ अपनी मन पसंदीदा ये मशरूबात यहाँ से लेकर जाते हैं बल्कि घर के लिए भी पैक करवा लेते हैं। और यहाँ पे जो है एक एक दो दो गिलास तो सारे लाजमी पीते हैं, क्योंकि मुल्तान में जो है इस वक्त शदीद गर्मी है, इसीलिए जो है यहाँ पे दुकानों पे काफ़ी ज़्यादा रश है। ख़ास तौर पे मशरूबात की दुकानों पे वैसे ही इस मौसम में रश देखने को मिलता है। और अगर कोई आपका मन पसंदीदा ही शरबत बनाए, जैसे आप कह रहे हो उसी तरीके से शरबत जो है बना के दे, तो ये भाई जो हैं आपको जैसा आप कहेंगे उसी तरह शरबत बना के देंगे। अगर आपने मिक्स शरबत पीना, आपको मिक्स शरबत बना के देंगे। और जो शहरी हैं वो इस बात को इसीलिए एंजॉय कर रहे हैं, दूर दराज से आए हैं। और हमारी जो टीम है उन्होंने भी अभी शरबत पिया है, वो मुझे दूर से इशारा कर रहे हैं, मैडम शरबत बहुत मज़े का है। क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी में अगर आपको कोई अच्छी चीज़ या ठंडी चीज़ मिल जाए वो भी सस्ते दामों में, तो वो उन किसी नेमत से कम नहीं है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई आप मुझे बताओ कहाँ से आए हो और इस मौसम में मशरूबात पीना कितना ज़रूरी है, और ठंडे मशरूबात आप कौन से पसंद करते हो? हम तो ये संदल का पीते हैं। संदल का पीते हो। और कहाँ से लोग आते हैं? भाई यही अपने मुल्तान के आसपास के काफ़ी दूर जगह से भी आते हैं। बाईपास, चौक कुमारा, नादराबाद फाटक से, हसनाबाद से, गुलगश से, 6 नंबर से, खान बाबा चिप्स वाला और खान बाबा पीस वाला, खान बाबा शरबत वाला मशहूर है बहुत माशाल्लाह। संदल का पीने आते हैं, बादाम का पीने आते हैं, जामी शीरी का पीने आते हैं। माशाल्लाह बड़ा नाम है, बड़ा म्यार है। बादाम पिस्ता, अच्छा बादाम पिस्ता खोया इधर जो है शरबत में डाल के देते हैं इसके साथ। और यहाँ पे जो है शरबत के साथ साथ शहरी, क्योंकि आसपास खाने पीने की चीज़ों की दुकानें हैं, तो फिंगर चिप्स वगैरह भी इनके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो इस मौसम में मशरूबात शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। भी माहिरीन भी यही कहते हैं कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए। जी।